Hello students, in our earlier video we have seen about the introduction of our microeconomics. Also we have seen the differentiation between microeconomics and macroeconomics. So in today's video we are going to start with the central problems of an economy. Central problem means what? One such problem which is faced by all the economies. Suppose whether it is Indian economy or it is a US or American economy, all have to face these problems if they want development in their country. Now see students, before studying the problems of our central economy, first let us understand what are the reasons for this problem. So one by one, first we will see the reason. So the first reason is what? Unlimited wants. Unlimited wants means what, students? Unlimited ends means unlimited wants is also known as unlimited ends. Okay? Now see, as I told you earlier, human wants are what? Unlimited. Once you buy a phone, you want what? Definitely you want a mobile back cover or you want a screen guard. And then finally what you want? To run your mobile phone, you need a very good internet pack. Now why our wants are unlimited, students? Because our resources to satisfy these wants are what? Unlimited. So which is our second reason. What is our second reason? लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैर्स रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी केयरफुली. ओके, सो नाउ सी व्हाई आवर वांट्स आर अनलिमिटेड? बिकॉज आवर resources to satisfy these wants are unlimited, which is our second reason. Means we have very limited money. हमारे पास हमारे पेरेंट्स के पैसे कैसे होते हैं? वेरी लिमिटेड टू satisfy the wants. ठीक है? If our resources were not limited, then our parents would have given you complete freedom to us to buy whatever we want. For example, if our salary is suppose 50,000, then in that 50,000 only हमको हमारी सारी wants को क्या करनी है? सारी wants fulfill करनी है. ठीक है? Now problem is ये सारी wants तो पूरी हो ही नहीं सकती. ठीक है? तो हमें क्या करना होगा? उस limited amount of resources में क्या हमारे लिए सबसे अच्छा है वो ढूंढना पड़ेगा. ठीक है? So we should get best of what we have. So we have third reason, that is alternative use. It means what? It means जो हमारे पास resources हैं उसके alternative use है. मतलब suppose सैलरी तो 50,000 है, लेकिन उस सैलरी से क्या हमें सिर्फ एक ही खर्चा करना है क्या? No, we have alternative resources. Means we have to use those 50,000 rupees of our salary वाइजली. वाइज मीन मतलब उसके बहुत सारे यूजेस है. वंस अगेन अंडरस्टैंड, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूज हैं. इसका मतलब बहुत सारे यूज हैं. ओनली बाइंग अ मोबाइल फोन इज नॉट देयर. ठीक है? अगर खाली फोन ही खरीदना है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. फुल 50,000 रुपीज आई कैन स्पेंड इन बाइंग अ मोबाइल फोन. सो आई डोंट वॉन्ट टू यूज इन बाइंग ओनली मोबाइल फोन. सो why there is problem? Our resources are having alternative uses. मतलब जो हमारे resources हैं उसके अलग अलग use हैं. So we have to see कहाँ पे उसको कितना लेके जाए. Means कौन सा want या कौन सा resources किस want के लिए use करना है. This we have to see so that our satisfaction is maximum. ठीक है? So ये three reasons हैं हमारे problems के लिए. So basic reason is what? लिमिटेड रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो कभी कोई इकोनॉमी बनती ही नहीं. ठीक है? और अभी तो इकोनॉमी तो है एंड वी हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर आवर रीजंस? वंस अगेन गो थ्रू द रीजंस. अनलिमिटेड वॉन्ट्स, दैट मीन्स अनलिमिटेड एंड्स. लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब स्कैर्स रिसोर्सेज. ठीक है? इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो लिमिटेड है. इट मीन्स स्कैर्स रिसोर्सेज. स्कैर्स मीन्स व्हाट? किसी भी चीज की कमी. एंड थर्ड वन मतलब जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उसको हमें ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी हैव सेंट्रल प्रॉब्लम्स. इन रीजंस के वजह से ही हमारी इकोनॉमी में क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स. वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो बहुत हैं. देखो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, but in our textbook, in your course in class 11th, we have to study what? We have to study only 3 problems. First problem is what? What to produce. Second problem is how to produce. And the third one is for whom to produce.
नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। इट मीन्स प्रोडक्शन तो है, ठीक है, प्रोडक्शन हो, लेकिन किस चीज का हो। नाउ द प्रॉब्लम कम्स ओवर हियर, व्हाट, किस चीज का प्रोडक्शन करना है। नाउ सी अ वन बेसिक थिंग, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन करना है, इफ वी वांट टू डू द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन थिंग, तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है, देन वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हमें पता है कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, सो उसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। बट व्हेन वी हैव मोर देन वन थिंग टू प्रोड्यूस, देन वी विल हैव टू सी ना कि किस चीज का कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, सो व्हाट इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करना है किस चीज का, बेसिकली इन दैट व्हाट टू प्रोड्यूस वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट इज व्हाट, कंज्यूमर गुड्स। नाउ सी, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो इट मीन्स वन सच गुड्स, जो गुड्स हमें डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ घी, ऑयल, paper. What we do with these things, directly we consume all these items. So all these are what, consumer goods, means directly we can consume. And second one is what, producer goods. It means ऐसे goods जो हम consume तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे प्रोडक्शन में उसको लगा देंगे। टेक एन एग्जाम्पल, मशीनरी, मशीनरी का एग्जाम्पल हो गया, और या फिर रॉ मटेरियल्स के लिए वॉट एवर वुड वी आर परचेसिंग, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सो दैट आई कैन मेक व्हाट, फर्नीचर। तो प्रॉब्लम कौन सी है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम दैट इज व्हाट प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, मतलब कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें क्या प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करें। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ द प्रॉब्लम कम्स, कंज्यूमर गुड्स बनाएं कि प्रोडक्शन गुड्स बनाएं। नाउ सी, व्हाट टू प्रोड्यूस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक है बॉल पेन और एक है हमारे पास जेल पेन। इफ वी डू द बॉल पेन प्रोडक्शन, तो जो लोग बॉल पेन यूज करते हैं दे विल गेट द बॉल पेन, ओके, सो दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जो लोग जेल पेन से काम करना चाहते हैं दे विल नॉट गेट एनी पेन, सो दे विल गो टू द शॉप एंड दे विल टेल द शॉपकीपर प्लीज गेट जेल पेन फॉर अस। एंड सो इफ आई डू द प्रोडक्शन ऑफ बॉल पेन, देन जेल पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड इफ बॉल पेन प्रोडक्शन इज देन पीपल विल आर डिमांड फॉर व्हाट, and if gel pen production is then people will demand for what, ball pen, ठीक है। so what we have to see, but what is not available is gel pen. Similarly if I do gel pen production, ठीक है, if I do gel pen production then people will demand what, ball pen. तो if I do consumer goods production then people will start demanding what, producer goods. लोग क्या डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड करेंगे। अगर मैं प्रोडक्शन गुड्स, इफ आई डू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स देन पीपल विल डिमांड व्हाट, कंज्यूमर गुड्स। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से वी हैव टू सी किसका प्रोडक्शन करना है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर बॉल पेन का प्रोडक्शन हो जाएगा तो जेल पेन के लोगों, जो लोग जेल पेन यूज करते हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और अगर जेल पेन का प्रोडक्शन होगा तो जो लोग बॉल पेन यूज कर रहे हैं दे विल फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम इज व्हाट स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ सी, अब प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस करना ये तो सोच लिया, अब प्रोडक्शन होगा कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब अब प्रोडक्शन कैसे होगा। सो देर आर टू वेज ऑफ डूइंग द प्रोडक्शन। फर्स्ट इज LIT एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, CIT. LIT मीन्स व्हाट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड CIT मीन्स कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। अब देखो, इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक इसका मतलब क्या होता है, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड। अगर सिंपल वे में बात करें तो आदमी लोगों से काम करवाना। और उसके बाद क्या है, CIT. CIT मीन्स व्हाट, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स में देखें तो मशीन से काम कराना। तो प्रॉब्लम वही है, अगर लेबर इंटेंसिव यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव यूज करें, ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर लेबर इंटेंसिव यूज करने से क्या होगा, देखो, अमाउंट ऑफ पीपल ऑफ लेबर विल इंक्रीज। जो लोग लेबर वाला काम करते हैं तो उनका तो क्या हो जाएगा, दे विल गेट द वर्क, दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, ऑल विल गेट द वर्क। बट है तो वो भी ह्यूमन बींग्स ना, वो लोग काम कहाँ तक कर पाएंगे, दे आर नॉट मशीन्स। सो दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर अ लिमिटेड टाइमिंग आवर्स, जैसे 9 to 5 ले लो या 10 to 6, ओके। तो वो एक लिमिटेड टाइम पे ही काम करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, एम्प्लॉयमेंट तो उससे इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इन कैपिटल इंटेंसिव व्हाट विल हैपन, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी,
ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन काम कौन करेगा? काम करने वाला सिर्फ एक ही आदमी है जिसको मशीन ऑन करनी है और ऑफ करनी है, तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। एक बार फिर से सुनो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा? मोर नंबर ऑफ पीपल विल गेट वर्क, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल जाएगा, बट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा? लेस नंबर ऑफ पीपल विल गेट वर्क बट प्रोडक्शन विल बी फास्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी काम करना है और बाकी सब क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। अब देखो, इफ मोर नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वो सब लोग क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम पुअर ना, एंड विद दैट व्हाट विल हैपन? पॉवर्टी विल इंक्रीज इन अवर कंट्री। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, इसके अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो दोनों में से है, वो कौन सा यूज करें, ठीक है, दैट इज हैज टू बी डिसाइडेड, या फिर वो हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाना है। और सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम थी? हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स कैसे बनाना है। अब थर्ड वन में देखो किसके लिए बनाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए? जो प्रोडक्शन सोच लिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होना है ना। सपोज हमने सोच लिया कि हमको इस चीज का प्रोडक्शन करना है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? किसको कितना मिलेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस वी हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसको उतनी ओनरशिप मिल जाएगी। इन शॉर्ट, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उन लोगों को सामान ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं है दे विल गेट नथिंग, दे विल बिकम पुअर, ठीक है। ये फंक्शनल प्रोडक्ट, ये हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स व्हाट? जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा तो दे दो, ठीक है, तो प्रॉपर्टी भूल जाओ। इसका मतलब जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको क्या करना है? दे विल गेट, ना तो उनको दे विल गेट मोर। जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं दे विल गेट मोर। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमें क्या करना है? दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मतलब पर्सनल में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको उतना मिलेगा, और फंक्शनल में जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको उतना ज्यादा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, लेबर, इफ लेबर इज डूइंग वर्क ही विल गेट वेजेस। इफ आई हैव गिवन माई हाउस ऑन रेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई विल गेट माई रेंट। देन अगर मेरे पास पैसा है, इफ आई हैव अ मनी, देन आई विल, money means if I'm investing my money somewhere, that is capital. So what will I get? I'm going to get what? Profit. Okay, I hope you have understood all the three problems of our economy, students. First is what to produce, how to produce, and for whom to produce. And for understanding the central problems of our economy, first we should see what are the reasons for this problem. Reason कौन से हैं? हमारी wants unlimited हैं, our resources are very scarce, और उसी स्कैर्स रिसोर्सेज में वी हैव टू डू द ऑल्टरनेटिव यूज। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।